shout that breaks through every chain. God, we won't be silent, no. There's a faith that rises through the flames. There's a joy that chases the dark away. God, we won't be silent. Is that true today? And the greater the storm, the louder our song. We lift our voices, make your praise so glorious, glorious. We lift our voices, make your praise so glorious. We make a joyful noise for you today, Lord. We send you freedom on our lips again. There's a faith that rises through the flames. There's a joy that chases the dark away. God, we won't be silent, no, 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 no. And the greater the storm, the louder our song. Yeah, the greater the storm, the louder our song. We lift our voices, make your praise so glorious, glorious. We lift our voices, make your praise so glorious. We'll never stop singing, we'll never stop singing, we'll never stop singing, we'll never stop singing. We lift our voices, make your praise glorious, glorious. We lift our voices, make your praise so glorious. We lift our voices, make your praise so glorious, glorious. We lift our voices, make your praise so glorious. God, for you are glorious. Sing it out. And the greater the storm, the louder our song. Yeah, the greater the storm, oh, the louder our song. We'll never stop singing, we'll never stop singing. No, we'll never stop singing, we'll never stop singing. Give a shout of praise today, everyone. No other name, Jesus. Yes, Lord. Make your praise glorious. Sing it out. It's higher. Yes, it's higher than the mountains that I face. And it's stronger than the power of the grave. And it's constant in the trial and the change. This one thing remains. Yes, you remain over us today, Jesus. It's higher. Yes, it's higher than the mountains that I face. And it's stronger than the power of the grave. Oh, and it's constant in the trial and the change. This one thing remains. It's this one thing I know remains. Lift it up. Yeah. It's your love.
because you're the hope of our lives today, Jesus. We set our feet firmly on who you are and your love over us today. It's just the truth, and we thank you for it. We stand under it today. Thank you, Jesus. We sing this out. You're the Lord Almighty. You're the Lord Almighty. Every word is true. Your every word is sure. And in your love unfailing, I'm safe when oceans roar. Yes, I'm safe when oceans roar. You're my anchor forever, my shelter within the storm, and you're my deliverer. You never falter, and you're the rock I stand on. Do you believe it? It's you within the struggle. Oh, in every crash you make, you are more than able, God. You are more than able, and your hand is strong to save. God, I know your hand is strong to save. You're my anchor forever. You're my shelter within the storm, and you're my deliverer. You never falter, 'cause you're the rock I stand on. Our Jesus, yes, you're the rock we're standing on. We're standing on you. We're standing on you. And I hold on to you, and you hold on to me. Yes, Jesus, I hold on to you, and you hold on to me. It's a beautiful truth today. Oh, Jesus, I hold on to you all my days, and you hold on to me. Oh, forever, Jesus, I hold on to you. Yes, and you are holding on to me. Yeah, 'cause you're my anchor forever, my shelter within the storm, and you're my deliverer. You never falter, 'cause you're the rock I stand on. Lift it up, my anchor forever. You're my shelter within the storm, and you're my deliverer. You never falter, 'cause you're the rock I stand on. You're the rock I stand on. It's your rock I stand Our trust is in your name today, Jesus. Your great name, your kind name. We worship you.
have a home, eternal home. But for now, I walk this broken world. You walked it first. You know our pain, but you show hope can rise again up from the grave. Abide with me, abide with me. Don't let me fall, and don't let go. Walk with me and never leave. Ever close, God, abide with me. There in the night, Gethsemane, before the cross, before the nails, overwhelmed, alone you prayed. You met us in our suffering and bore our shame. Abide with me, abide with me. Don't let me fall, and don't let go. Walk with me and never leave. Ever close, God, abide with me. A love that will not ever let me go. Love that will not ever let me go. You never let me go. Love that will not ever let me go. And up ahead, eternity, we'll weep no more and sing for joy. Abide with me. Yeah. We'll weep no more and sing for joy. Abide with me. Abide with me. Abide with me. Don't let me fall, and don't let go. Would you walk with me and never leave? Ever close, God, abide with me. Ever close, God, abide with me. Ever close, God, abide with me. Oh, love that will not ever let
आप सबको खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। क्या आप खुश नहीं हैं कि यीशु आपसे मोहब्बत करता है और आपको वो कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा? इससे पहले कि आप अपनी नशिस्तों पर जाएं, मैं दुआ करना चाहती हूँ और आप भी दुआ करें। गैर महफूज शुदा अजीजों के लिए। कितनों के खानदानी अफराद हैं जो खुदा में नहीं चलते? ठीक है। कितनों के शौहर खुदा में नहीं चलते? खूब। क्या कोई करीबी रिश्तेदार है जो खुदा में नहीं चलते? आप जानते हैं, मुझे लगता है आज इस जगह बहुत कुव्वत है। मुझे यकीन है कि अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो यकीनन कुछ अच्छी शहादतें सुनने को मिलेंगी। आमीन। लेकिन दुआ करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, पिछले बरस मुझे ये जुमला दरियाफ्त हुआ जिसे मैं दुआ और अर्ज करना कहती हूँ। बात यह है कि हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद आप सब लोग उनके बारे में बात ना करें जैसे उन्हें नजात मिलने की नहीं। मजीद नहीं, बल्कि मुझे ये शक है वो गुमराह हो जाएंगे। मुझे यकीनी तौर पर शक है। ये ना कहें कि आप तब्दील नहीं होंगे। किसी भी अजीज को ये ना कहें कि मुझे नहीं लगता कि आप तब्दील होंगे। किसी से ऐसा कहना एक खुद शिकस्ता जुमला है। याद रखें कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरे वालिद जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, वो मेरी जिंदगी के जलील लोगों में से थे। वो 83 साल के थे जब उन्होंने अपना दिल खुदा को दिया। आमीन। खुदा बाप, आज हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस नाम से प्यार है। वाह यीशु के नाम से हम लोगों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें आप हमारी जिंदगी में लाए। उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए आपने हमें मौका फराहम किया आपका नुमाइंदा बनने का, आपका शाहिद बनने का। इसलिए आज सुबह मैं यहाँ तमाम लोगों के लिए दुआ करती हूँ, जैसे कि वो जो अपने गैर नजात याफ्ता अजीजों के पास है, वो वाकई आपके जरिए उनको रोशन करें कि वो फैसला कुन नहीं होंगे और ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से लोगों को एहसास जुर्म हो, लेकिन वो आपको उनके जरिए रोशन करेंगे। आज हम उन लोगों की इस्लाह करते हैं जो गुमराह हो चुके हैं, जो आपकी रफाकत से बाहर हैं, जो मनशियात या शराब नोशी के आदी हैं, वो लोग जो गुनाह आलूदा हैं, गुमराह कुन जिंदगी जी रहे हैं। हम नाफरमानी और जिद के शैतानी जज्बात पर इख्तियार रखते हैं। आए खुदावंद हमारी आवाज़ों को सुने। आपके नाम में हम नाफरमानी की ताकत से अलहदगी मांगते हैं और मैं उनके कुलूब की सैराबी के लिए रूह आजिज़ी की दुआ करती हूँ कि वो खुद को आजिज़ करें और कहें कि खुदावंद मुझे आपकी ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं माँ बाप, भाइयों और बहनों के लिए, रिश्तेदार और शोहरों के लिए भी, जिनसे भी ये प्यार करते हैं, जिनके बारे में ये फिक्रमंद हैं। हेलो, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या जिनके लिए फिक्रमंद हैं, उन सभी की इस्लाह करते हैं। उन्हें नजात याफ्ता कहते हैं। आपने कहा उन चीजों को पुकारो जो गोया है ही नहीं। हम उन्हें नजात याफ्ता कहते हैं, उन्हें रूल कुद्दस से मामूर कहते हैं। हम उन्हें आपका तलबगार और वक्फ शुदा कहते हैं। ऐसे लोग हैं जो साहिबे औलाद हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, जो तब्दील हो जाएंगे और कलामे खुदा के मुबल्लिग बन जाएंगे। जो साहिबे औलाद हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा उनकी जिंदगी को मसा करे और वो अजीम मकासिद बने। एक तब्दीली आ रही है। हम यीशु के नाम से शैतान को असी करते हैं, उसकी मलामत करते हैं और ऐलान करते हैं कि तू हमारे अजीजों को नहीं रख सकता, तू हमारे बच्चों को नहीं रख सकता, तू हासिल नहीं कर सकता, नहीं तू उन्हें हासिल नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। हम एक साथ मुत्तफिक हैं। हम में से हजारों ने आज इस जगह पर अपना ईमान यकजा किया है, जैसे एक आदमी 1000 का पीछा करता है और 2 10,000 का। हम इसे मुकम्मल कहते हैं यीशु के नाम में। आमीन। बेहतर है।
विलादत नौ का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी कलीसिया से जुड़ने के लिए साइन अप करते हैं और रवैये में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। विलादत नौ का ये मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ इस बात को समझें, जब विलादत नौ होती है खुदा आप में कायम हो जाता है। विलादत नौ, खुदा आपकी रूह में कायम पजीर हो जाता है और आप मसीह में हयात हो जाते हैं। आप खुदा का मस्कन बन जाते हैं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? अगर आप नजात याफ्ता हैं तो कहें, खुदा मुझ में कायम है। यह आपको पुरजोश करने के लिए काफी है। मसीह को हासिल करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना। उसने वो कर दिया है जो करने की जरूरत है। आपको फकत सरे तस्लीम खम होना है। मैं ना सिर्फ मसीह को कबूल करने के लिए कह रही हूँ, बल्कि ये भी कहती हूँ कि अपने आप को सरे तस्लीम खम करें। हो सकता है आज यहाँ बहुत से ऐसे लोग हों जो महसूस करते हो कि आपने मसीह को हासिल कर लिया है, लेकिन ये भी सच है कि आपने खुद को सरे तस्लीम खम नहीं किया। ये महज हमारे तमाम मसाइल को हल करने की खातिर यीशु को कबूल करने की दावत नहीं है। ये खुदा के फजल से अपने जहन को बदलने, तौबा करने और बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाने के लिए तैयार होने की दावत है। यीशु के फजल से यीशु ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। इफसियों 2 बाब 8 और 9 कलाम में कुव्वत है, लिहाजा मैं आपके लिए पढ़ूंगी। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है। ये आपके ईमान के वसीला से मिली। लिहाजा आज आपको महज इकरार करना है कि मैं ईमान लाता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ। मैं नहीं जानती कि हम कैसे ईमान लाएं। हमने उसे नहीं देखा। जब ऐसा हुआ तो हम मौजूद नहीं थे। लेकिन ये हैरत अंगेज है, जब आपके दिल में ईमान हो, आपको उन बातों पर ईमान लाने की अकीदत है जो आपके जहन में मायने नहीं रखती। मैं भी नहीं जानती कि मैं ये कैसे जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ। मैं ये जानती हूँ, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है कि यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। लिहाजा आज सुबह आपको पूरी दुनिया का सबसे हैरत अंगेज तोहफा पेश किया जाता है। हालांकि आपकी विलादत नौ को 20 बरस भी हो चुके हों, फिर भी आपको इस कलाम की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि वाकई हमारे पास जो है वो कितना हैरत अंगेज है। तुम खुदा का मस्कन हो। आपको मसीह में रास्तबाज ठहराया गया। इसके मायने जानते हैं? ऐसा बनना जैसे आपने गुनाह ना किया हो। वाह, खरीदा गया। कीमती कीमत के इवज में आपकी कीमत अदा की गई। आप खुद के नहीं हैं, बल्कि खुदा के हैं और ये तुम्हारे अमाल के सबब से नहीं है और ना ये अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। ये उसका नतीजा हरगिज नहीं है कि कोई क्या कर सकता है। लिहाजा कोई फख्र नहीं कर सकता ताकि गुमान करे। आज सुबह मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि आपको यकीन है कि आपको विलादत नौ मिली है। आप कहेंगे मैं गिरजा जाती हूँ। क्या आप जानते हैं, मैं 1 साल तक गैराज में बैठकर कभी भी कार नहीं बन सकती, और सिर्फ इसलिए कि आप गिरजा में बैठते हैं, हफ्ते में 3 मरतबा भी जाते हो, तो ये आपको मसीही नहीं बनाता। और मेरे ख्याल में वाकई ही ये एक मुगालता है। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी और उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से पासबान मौजूद हैं। मुझे गिरजा से मोहब्बत है और मैं लोगों को यही तरगीब देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इस पर ज्यादा ही जोर दिया है कि आप गिरजा जाते हैं। क्या ये इस बाबत काफी नहीं कि क्या आप मसीह को जानते हैं, कि क्या आपका उससे ज्यादा और गहरा रिश्ता है? आमीन। और सच पूछे तो अगर ऐसा है, अगर आप उसे जानते हैं, तो किसी को आपको गिरजा ले जाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप दीगर मोमिनीन के साथ रफाकत करना चाहेंगे, आप खुदा के घराने में रहना चाहेंगे, इबादत करना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे, तो
जब मैं किसी से पूछती हूँ आप मसीही हैं, वो कहते हैं हम गिरजा जाते हैं। यही मुसीबत है। ये ना समझे कि आप गिरजा जाते हैं तो आपकी विलादतें न हो चुकी। क्या आपके अंदर खुदा का रूह मौजूद है? क्या आप अपने अंदर की पजीर शुदा जिंदगी को महसूस कर सकते हैं? क्या आपका ईमान है अगर यीशु अगले 10 मिनट में आ जाए तो आप उसके साथ अब्दी जिंदगी गुजारेंगे, हमेशा हमेशा के लिए? क्या यह तसल्ली बख्श नहीं कि मैं मरने से नहीं डरती? मैं उस अमल की परवाह नहीं करूंगी अगरचे ये ज्यादा तकलीफ दे था। मैं मरने से नहीं डरती। मैं जानती हूं कहां जाना है। मैं चाहती हूं कि आप भी यकीन रखें, और बहुत से रखते भी होंगे, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाऊं। कल रात आपने मेरा पैगाम सुना होगा। उम्मीद है कि ये बहुत वाज़ेह था। मैंने आज सुबह एक हैशटैग देखा जिसने मुझे बरकत दी। लिखा था, मैंने फैसला कर लिया, मैंने अपना जहन बनाकर मौकफ इख्तियार कर लिया है कि मैं यीशु में रोशन होने वाली हूँ। और मैंने कहा अगर वो वाहिद है जिसने उसे हासिल किया, मैं खुश हूँ कि मैंने तबलीग की। आमीन। यीशु जल्द आ रहा है, और ये ऐसा वक्त नहीं है कि चीजों को टाल दिया जाए। आप कहेंगे ठीक है, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तब्दील करना निहायत जरूरी है। अगर मैं ये अहद करती हूं तो सबसे पहले आप फैसला करना शुरू नहीं करते कि क्या तब्दील करना है क्या नहीं। आप खुदा को रहनुमाई करने देते हैं और अगुवाई करने देते हैं। ऐसी चीजें होंगी जिन्हें तब्दील करने की जरूरत होगी, लेकिन खुदा जानता है कहां और कब मुदाखलत करनी है। कलीसिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है किसी को ये बताना कि अगर यीशु की खिदमत करनी है तो आपको ये करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। और लोग यकायक कुल कशीदगी महसूस करने लगते हैं। मैं उस औरत को कभी नहीं भूलूंगी जो मेरे पास मशावरत के लिए आई, और वो एक शख्स के साथ रह रही थी बिना शादी किए, और मैं बेकरार होकर उसे बताने वाली थी कि उसे कैसे तब्दील होना है। वो चंद हफ्ते पहले ही मेरी एक मीटिंग में निजात याफ्ता हुई थी। वो एक नौनिहाल बच्चे की मिसल मसीही थी। वो यीशु के साथ अपने ताल्लुकात से खुश थी, बस अपने साथी के साथ रह रही थी। खुशहाल मसीही अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लिहाजा मैं उसे दुरुस्त करने को उतारू थी कि वो गलती कर रही है, उसे निजात हासिल करनी होगी। मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा ने मुझे कहा, खामोश रह। मैं उसे बताऊंगा जब मैं उसको दिल से तैयार करूंगा, जब सही वक्त होगा। आमीन। कई मर्तबा ऐसा होता है कि किसी का सामना करने के लिए खुदा हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन हम उस बात के लिए अपना मंसूबा नहीं रख सकते कि हम उन्हें कैसे बताएंगे कि उन्हें एक खास वक्त में सही होना है, वरना वो हमारे साथ कोई रफाकत ना रखें। कलीसिया हयात नौ के लिए दुआ करती है, पर सच पूछे तो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को वाकई निजात चाहिए वो तो शामिल होंगे, लेकिन नए मसीही इस दर्जे की समझ नहीं रखते। क्योंकि अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं, बाल अच्छे नहीं, खुशबू अच्छी नहीं, अच्छे दिखते नहीं, तो हमारी जमात का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। आमीन। लिहाजा अगर आज आप यहाँ आए हैं और कहें, जॉयस मैंने कभी अपनी जिंदगी मसीह के हवाले नहीं की, मैं एक मसीही बनना चाहती हूँ, बाकी जिंदगी खुदा की खिदमत में गुजारूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। मैं खुदा के साथ गहरी रफाकत चाहती हूँ। मैं आज आपके साथ दुआ करना चाहती हूँ। अगर आप कहें कि जॉयस मैं भटक गई हूँ, मैं नई शुरुआत चाहती हूँ, मैं आपके साथ दुआ करना चाहती हूँ। या फिर अगर आप कहें मैं महज मजहबी हूँ, आपने हमें मुतासिर किया, महज मजहबी, मैं मुकम्मल तौर पर अहद करना चाहती हूँ और खुदा की लौ में जलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ खुदा का मेरी जिंदगी पर कब्जा हो, मैं नए सिरे से पैदा होना चाहती हूँ। तो आप सिर्फ अपना हाथ उठाएं ताकि मैं देख सकूं आप कहाँ हैं। उठाएं। ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन, पुरकमाल, हैरत अंगेज, खूबसूरत। मैं खुश हूं कि मैंने ये मौका खोया नहीं। ये जुमेरात से बेहतर है। ठीक है, जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाएं। आपको सामने नहीं बुलाऊंगी। खड़े होने से ना घबराएं, शर्मिंदा ना हो। अगर आप यीशु के लिए मौकफ नहीं लेंगे तो आप ये कहीं नहीं कर पाएंगे।
खुदा बरकत दे। पुरकमाल है। अजीजों, शर्मिंदा ना हो, हम आपके लिए खुश हैं। ऊपर चौबारों में हर जगह खड़े हो जाएं। ये आपका मौका है। रोशन होने का वक्त है। एक दूसरे के हाथ पकड़ ले जितने अजीज खड़े हैं। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगी, आखिरी मर्तबा गुजारिश करूंगी, अगर आप खड़े नहीं हुए और आप जानते हैं कि आपको होना चाहिए, मेरे 3 तक गिनते ही कूदकर खड़े हो जाएं। 1, 2, 3। बहुत अच्छा, पुरकमाल। आई खुदा, तू आला है और हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। आई यीशु, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। आज लोगों के दिलों में ईमान लाने और अपने फजल से उन्हें तहरीक देने के लिए और इन्हें नजात की जानिब खींचने के लिए आप सब मेरे साथ दुआ करें। आई खुदा बाप, मैं चाहती हूँ यीशु, मैं आप पर ईमान लाती हूँ। मेरा ईमान है कि आप मेरी जगह कुर्बान हुए, मेरी सजा अपने सर ली। आपने मेरे गुनाहों का कफारा दिया। आप मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जिंदा हैं। मुझ में कयाम कीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मेरी जिंदगी लीजिए। मैं खुद को आपके हवाले करती हूँ। मैं आपको कबूल करती हूँ। मैं जैसी हूं मुझे अपना लें। मुझे वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। सरे तस्लीम खम करती हूं। मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। मैं जन्नत के रास्ते पर हूं और मैं सफर से लुत्फानंदोज होंगी। आमीन। चलिए खुदा की अजीम सना बयान कीजिए। पुरकमाल एंथनी आएंगे और हमारे लिए एक हम्द का गीत सुनाएंगे। Our strength is renewed in your presence as we sing to you, and our joy is restored in your presence as we worship you. Our faith cannot be shaken, nothing can separate us. The Lord is with us, the Lord is with us, our God is for us. He will never fail. The Lord is with us. The Lord is with us. Our God is for us. He will never fail. No, never fail. He will never fail. No, never fail. No, no, no. Our hope is revived in your presence as we sing to you, and your word comes alive in your presence as we trust in you. Our faith cannot be shaken, nothing can. All right, sing it with me, here we go. The Lord is with us, the Lord is with us, our God is for us, He will never fail. The Lord is with us, the Lord is with us, our God is for us, He will never fail. No, never fail. No, He will never fail. No, never fail. Hey, He's defeated all of our enemies. He has put all things underneath our feet. He has conquered death and given us victory. Clap with me like this. Come on, say it. He's defeated all of our enemies. He has put all things underneath our feet. He has conquered death and given us victory. Here we go. 1, 2, 3, say it. The Lord is with us. The Lord is with us. Our God is for us. He will never fail. The Lord is with us. The Lord is with us. Our God is for us. He
sin